Hello everyone, how are you? I hope you are all well and welcome to Tour Academy. So today I am going to explain some part of animal tissue. As we know that tissues can be classified under two different categories, and number one is plant tissues and number two is animal tissue. So plant tissue already I have explained in my previous vlog. प्रीवियस व्लॉग में मैंने सारे जितने भी प्लांट टिश्यूज थे सब एक्सप्लेन करे हुए हैं. सो आई होप आपने देख लिए होंगे. एंड नंबर टू, आज मैं एनिमल टिश्यूज का कुछ पार्ट आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एनिमल टिश्यूज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज like epithelial tissues, number 2 connective tissue, number 3 muscular tissue, and number 4 nervous tissues. These are the four types of animal tissues, and these types further can be classified into different categories according to their location, according to their function, and all these things. Structure उनका different हो सकता है थोड़ा बहुत. So on the basis of these things, these animal tissues के जो 4 types मैंने बताए हैं आपको, further they can be classified into different categories. For example, epithelial tissue further can be classified into squamosal epithelial tissue या squamous epithelium. Number 2, cuboidal epithelial tissues या cuboidal epithelium tissue, columnar epithelium tissue. कॉलमनर एपिथेलियम के बाद आ जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज, एंड द लास्ट इज ciliated epithelium tissues. So these are the different types of epithelium tissues. एनिमल टिश्यू 4 टाइप का होता है: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यूज, राइट. और इनके भी आगे पार्ट्स है. लाइक एपिथेलियल tissue further can be classified into squamous epithelial tissue, number 2 cuboidal epithelial tissue, number 3 columnar epithelium tissue, and number 4 glandular, जिसमें glands होती हैं, epithelial tissue, and number 5 ciliated epithelium tissue या epithelial tissue. So epithelial tissues further can be classified into these 5 parts. After that, connective tissue further can be classified. Connective tissues solid भी होते हैं, like areolar, cartilage, bone, tendon, ligament. These are the solid or dense connective tissue इनको बोलते हैं. And blood and lymph, these are the liquid or fluid connective tissue. Fluid means which can flow, that is all the gaseous substances, all the liquid substances, they are collectively called fluids. So these are fluid connective tissue. Blood liquid होता है, lymph liquid होता है. So areolar, cartilage, bone, tendon, ligament, blood, lymph सब हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, and collectively they are known as connective tissue. Number 3, muscular tissue. Muscular tissue further can be classified into different groups like striated muscular tissue, non-striated muscular tissues, also known as smooth tissues. Number 3, cardiac muscular tissue. Cardiac tissues. Cardiac word is related with heart. So heart बनाते हैं, ये heart का पूरा structure बनाते हैं. That is why they are known as cardiac tissue. They make the structure of heart. And last है nervous tissue. इसका और कोई type नहीं है, सिर्फ nerve cell होते हैं इसके अंदर, और एक बस इसका और कोई type नहीं है. So animal tissues के ये मैंने classification बताया है. 1, 2, 3, 4 types of animal tissue. Further इनके ये types हैं, ये epithelial tissues के types हैं. So out of all these classes, out of all these types, today I am going to explain about epithelial tissue. Epithelial tissue के बारे में सिर्फ आज मैं बताऊंगी कि what are epithelial tissues, what are the basic characteristic features of epithelial tissue, and what are the
लोकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, किन किन पार्ट्स में पाए जाते हैं, एंड उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं इसके बताती हूँ जो हर एपिथेलियल टिश्यू के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वेदर इट इज स्क्वेमोजल एपिथेलियल टिश्यू या कॉलमनर है या ग्लैंडुलर है, किसी भी टाइप का है, उसमें दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये तो मिलते ही मिलते हैं। सो फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक तरह से एक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यूज और उनमें क्या क्या मेन मेन फीचर्स होते हैं। सो नंबर वन, दे आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यूज हैं ये एनिमल टिश्यू के। दीज आर द एपिथेलियल टिश्यू, दे आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड वन लेयर में भी सिंगल लेयर हो सकती है इनकी। सिंगल लेयर में चेन की तरह एक के बाद एक लाइक दिस यहाँ पे बने भी हुए हैं, मे बी वन लाइन और मे बी स्ट्रेटिफाइड, मतलब इनकी कई लेयर्स भी हो सकती हैं। सो बोथ वेज दे आर फाउंड इन आवर बॉडी। वन लेयर स्ट्रक्चर भी हो सकता है जैसा यहाँ पे बताया है, एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स कई कई लेयर्स में भी ये मिल सकते हैं। नंबर टू इज कि मेन कैरेक्टर व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ epithelial tissue, main function of epithelial tissue is to form external layer of the organ and internal surface also of the organ। हर organ की जैसे हमारी skin है, इसकी upper surface is made up of epithelial tissue and इसकी जो skin हमारी काफ़ी thick होती है, उसकी जो inner lining है that is also made up of epithelial tissue। So external lining, internal lining या external surface, internal surface of all the organs, जितने भी हमारे बॉडी के जैसे लंग्स हैं, हमारा बकल कैविटी है, हमारे स्टमक है, डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी इनर लाइनिंग एज वेल एज आउटर सरफेस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, राइट। नंबर थ्री, नो इंटर, दे आर टाइटली पैक्ड, इनमें नो इंटर सेल्यूलर स्पेसेस आर फाउंड। दे आर टाइटली पैक्ड, एक के बाद एक अच्छे से जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस नोन एज सीमेंट सब्सटेंस। एक सीमेंट सब्सटेंस के साथ दे जॉइंट टुगेदर एंड देर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन देम, मतलब कि हर सेल आपस में जुड़ा हुआ होता है, कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस यानी कि दो सेल्स के बीच में देर इज नो स्पेस, खाली जगह नहीं होती है। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आ जाता है कि मेनली व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ, अभी आप देखोगे एपिथेलियल टिश्यू मेनली इनका काम होता है सिक्रीशन का भी होता है, समथिंग दे सिक्रीट, कुछ ना कुछ म्यूकस हो गया या कोई और चीज़ हो गई, सिक्रीट भी करते हैं। नंबर टू, इनका एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, एब्जॉर्ब भी करते हैं। अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय देम, अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेज आर सिक्रीटेड बाय देम। तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इनका भी काम होता है इसका। नंबर 5 है लाई ऑन अ डेलिकेट, ये एक जितने भी आप अभी देखोगे different types of epithelial tissues, they are based on a fine delicate membrane, सब एक delicate membrane की, see this is a delicate membrane, इसमें भी एक membrane है delicate membrane, इनमें सब में आप देखोगे at the base of these tissues एक delicate membrane है। this delicate membrane itself it is known as base membrane। इस delicate membrane को बेस मेम्ब्रेन बोलते हैं बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, राइट। इसके बाद देर इज अनदर जनरल फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड दैट इज कि दिस एपिथेलियल टिश्यू दे perform a number of functions, they are very very useful for us, like the lining of these epithelial tissue responsible for to protect the underlying cells। इनके नीचे वाले जो सेल्स हैं अंडरलाइंग सेल्स उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं।
बिकॉज उनके ऊपर ये होते हैं, तो अंडरलाइन जितने भी सेल्स हैं दे प्रोटेक्ट दोज tissues and those cells also. And next, he from injury, they protect us from any type of injury also. They protect us from any type of chemical reactions. उससे भी काफ़ी एक हद तक, काफ़ी एक लिमिट तक हमें उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं. एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपने देखा है, कोई कट वट एकदम लगता है तो इमीडिएटली यू विल हैव टू कवर इट एंड यूज समथिंग, ताकि उसमें बैक्टीरिया एंटर नहीं कर जाए, क्योंकि हमारी एपिथेलियल टिश्यूज वहाँ से कट हो चुके होते हैं. सो उस कट के थ्रू बैक्टीरियाज एंड अदर केमिकल्स एंड these things can enter into our body and create a lot of problem. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ये रोकते हैं. So these are the general characteristic feature of epithelial tissue. समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है, अब आई विल डिस्कस अबाउट different types of, I will explain different types of epithelial tissue. तो यहाँ पर we have squamous epithelial tissue या squamosal epithelial tissue भी इसको बोलते हैं. नंबर 2 मैं बताऊंगी आपको क्यूबॉइडल epithelial tissue. इनके जो नाम है उससे भी इनके फंक्शन के बारे में पता लग जाता है और इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी. एंड नंबर 3 columnar epithelial tissue. एंड नंबर 4 ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. और उसके बाद आ जाता है, लास्ट है, ciliated epithelial tissue. First of all, I will talk about squamosal epithelial tissue. So what are squamosal epithelial? ये सारे epithelial tissues हैं. तो जो बेसिक इनकी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताई वो तो सब में है ही है. इसके अलावा कुछ इनमें स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू है, तो सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर कोई ना कोई एक्स्ट्रा उनका फीचर भी होगा. तो सबसे पहले स्क्वेमोजल एपिथेलियल के जो बेसिक फीचर वो तो है ही है, उसके अलावा लोकेशन इसकी कहाँ है. पर्टिकुलरली दिस स्क्वेमोजल एपिथेलियल टिश्यूज, दे आर on the inner and upper lining of the skin. They make the upper lining and inner lining of our skin. ऊपर स्किन के, नीचे स्किन के. इसके अलावा हमारे चीक्स अंदर, जो ये चीक्स के अंदर वाले जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, दे आर ऑल्सो स्क्वेमोजल एपिथेलियल टिश्यूज. और कभी कभी इसका एक्टिविटी करके भी स्कूल्स में बताते हैं हम, कि अंदर से थोड़ा सा स्क्रैच करके टिश्यूज निकाल के, एंड यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप दे विल बी लाइक दिस. इस टाइप के वो होते हैं. एंड नंबर 2, लंग्स की आउटर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमोजल एपिथेलियल टिश्यूज. एंड ब्लड वेसल्स की अपर लाइनिंग, लोअर लाइनिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. राइट, दोबारा बताती हूँ. स्क्वेमोजल एपिथेलियल टिश्यूज लोकेटेड on the upper lining, lower lining of skin, inside the cheeks. cheeks के अंदर स्क्रैच करके आप माइक्रोस्कोप में रख के देख सकते हो, they are like this. and उसके बाद आपके lungs की outer lining, inner lining is made up of squamosal epithelial tissue. blood vessels की inner lining and outer lining. blood vessels means arteries, veins, capillaries. so उनकी upper and inner lining is also made up of epithelial squamosal epithelial tissue. so ये तो मैंने इनकी लोकेशन बताई. now what is the function? आपको पता है इन फंक्शन में से इनका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ही. जैसे कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये. हमारे अंडरलाइन जितने भी सेल्स हैं, इनके नीचे पाए जाने वाले जितने भी सेल्स हैं, दे प्रोटेक्ट दोज सेल्स. तो एक तो प्रोटेक्शन का फंक्शन है. नंबर 2, ऑस्मोसिस. क्योंकि सिंगल लेयर ऑलमोस्ट इनकी होती है, तो इसलिए इनमें ये ऑस्मोसिस भी करते हैं. ऑस्मोसिस का आपको मीनिंग पता है कि इनकी जो वॉल्स है उसमें से सम लिक्विड्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो इनमें ऑस्मोसिस का भी प्रोसेस होता है. सो these are the functions of these squamosal epithelial tissue. दोबारा बताती हूँ फंक्शन. एक तो प्रोटेक्शन का इनका काम है.
नंबर 2 ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मीनिंग आपने टाइम पे 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोसिस is a type of diffusion in which liquids, normally water or gaseous substances also, they pass from higher concentration to lower concentration. They are transmitted from higher concentration to lower concentration through a cell membrane. That process is known as osmosis. तो ये जो आपके स्क्वेमोजल एपिथेलियल टिश्यू है, they do osmosis also. जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ऑस्मोसिस का भी काम करता है. कुछ मटेरियल इनमें से बाहर निकलते हैं, कुछ अंदर भी आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया इसका. स्ट्रक्चर इसका ये है कि सिंगल लेयर है एंड इसमें देखो द बेसिक, ये जो बेस है इसका, दिस इज नोन एज बेस मेम्ब्रेन. कहीं ना कहीं मैंने लिखा है, नहीं लिखा, दिस इज द बेस मेम्ब्रेन जिसने इसका बेस बनाया है. दिस इज अ वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन. इसके ऊपर दे आर सिचुएटेड ऑल द स्क्वेमोजल एपिथेलियल टिश्यूज, जिसमें जितने भी सेल्स हैं वो इस बेस मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं. एंड बेस मेम्ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन एंड वैसे वो प्रोटेक्ट करती है इनको. और इसमें सिंगल न्यूक्लिएटेड, हर एक में एक एक न्यूक्लियस है. दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल. सो ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस इन इट. सेल है तो साइटोप्लाज्म तो हो गई. सो ये साइटोप्लाज्म डॉट डॉट करके मैंने बताया, साइटोप्लाज्म, बेस मेम्ब्रेन, एंड all the cells, they are joined together, they are arranged compactly, joined together by a cement substance. बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं. टाइटली पैक्ड क्यों होते हैं कि इन बिटवीन टू सेल्स देयर इज अ सीमेंट लाइक सब्सटेंस. बिल्कुल सीमेंट सब्सटेंस, सीमेंट की तरह का सब्सटेंस होता है जो इनको इस तरह से बिल्कुल जोड़ के रखता है, बिल्कुल जोड़ के रखता है इनको. That is why it is known as cement substance. So because of this cement substance, they are tightly packed with each other. There is no intercellular spaces नहीं होते. इसमें आपको जर्नल मैंने प्रॉपर्टी में भी बता दिया था. They don't have any intercellular spaces. So you can see here there is no intercellular space. तो फंक्शन भी हो गए इसके, स्ट्रक्चर भी हो गया इसका, लोकेशन भी हो गई इसकी. सो वी मूव फर्दर. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज अब आ जाते हैं. नाम से ही पता लग रहा है क्यूबॉइडल है, सो दे मस्ट बी क्यूब शेप, क्यूब के शेप की होंगे, चौरस होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन क्या है? लोकेशन इन किडनी ट्यूब्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, किडनी के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं. डोंट मिक्स अप विद न्यूरॉन. न्यूरॉन हमारा ब्रेन बनाता है, किडनी बनाते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किडनी के अंदर. नेफ्रॉन कहते हैं उनको, और उनमें ट्यूब भी होती है एंड किडनी ट्यूब्यूल्स इसको बोलते हैं. किडनी के अंदर ये ट्यूब वाले स्ट्रक्चर नेफ्रॉन होते हैं. सो किडनी ट्यूब्यूल के अंदर भी आपके क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब के शेप के स्क्वायर, दीज क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर प्रेजेंट. इसके अलावा हमारी थायराइड ग्लैंड, थायराइड वेसाइकल्स या थायराइड ग्लैंड्स में भी दीज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट. इसके अलावा गोनेड्स, गोनेड्स मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, जैसे टेस्टिस मेल सेक्सुअल ऑर्गन, ओवरीज फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन. इनकी भी अपर लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. दोबारा से बताती हूँ इसका फंक्शन, लोकेशन. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज का लोकेशन इन किडनी ट्यूब्यूल्स, आउटर लाइनिंग, इनर लाइनिंग किडनी ट्यूब्यूल्स की. दीज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड. नंबर 2 थायराइड ग्लैंड्स में अपर लाइनिंग, इनर लाइनिंग. थायराइड ग्लैंड वन पेयर होता है, उसको थायराइड वेसाइकल्स भी कहते हैं. एंड उनकी अपर लाइनिंग एंड लोअर लाइनिंग, इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज.
आफ्टर दैट गोनेड्स, गोनेड्स जहाँ भी वर्ड आता है इट मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स like testes, outer lining, inner lining, made up of cuboidal epithelial tissue, and after that ovaries, female reproductive organs made up of upper lining or inner lining is made up of cuboidal epithelial tissue. तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, सी, क्योंकि नाम ही है इसका क्यूबॉइडल, इसका मतलब दे आर क्यूब शेप, तो ये है इसकी क्यूब शेप. ऑल द सेल्स ऑलमोस्ट क्यूबिकल हैं एंड सेंटर में इनके एक एक न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म है. हर सेल में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है, दैट इज व्हाई इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हर सेल में साइटोप्लाज्म एंड दिस थिंग इज प्रेजेंट, दैट इज न्यूक्लियस. और इसमें भी दिस इज द बेस मेम्ब्रेन, सबसे नीचे इसकी सेम आपको बताया हर एक में बेस मेम्ब्रेन होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये सेल्स आर अरेंज्ड. So this is known as base membrane. Base membrane. Above this base membrane, these cells are arranged cuboidal epithelial tissues made up of cube, like cube के structure के cells से बने होते हैं. And अभी मैंने बताया they are also tightly packed, क्योंकि आपको मैंने general characteristics में बताया कि they don't have any cellular spaces, so they are tightly packed and they are tightly attached with each other. बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल they are stuck to each other, बिल्कुल stick ऐसे चिपके हुए होते हैं. and इसमें in between these cells, these are cement substance, just like cement substance. That is why they stick with each other so tightly without any intercellular spaces. So this part, इसका जो partition है यहाँ पे सीमेंट सब्सटेंस होता है, तो इससे जुड़े हुए होते हैं. और इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बेस मेम्ब्रेन है, सीमेंट सब्सटेंस है. दिस इज द स्ट्रक्चर. हमेशा ये 3-4 पार्ट आपने जब भी whenever you draw the diagram of these tissues, किसी भी टिश्यू का डायग्राम ड्रॉ करोगे आप, उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बेस मेम्ब्रेन इज आप विदाउट थिंकिंग आप लिख सकते हो. साइटोप्लाज्म तो होता ही है सब में, न्यूक्लियस सब में होता ही है, बेस मेम्ब्रेन सब में होती है. सो ये तो बिना सोचे आप लिख सकते हो आपके डायग्राम में लेबलिंग करने के लिए, क्योंकि आपसे हमेशा डायग्राम पूछते हैं. तो डायग्राम मीन्स नो ड्राइंग. ड्राइंग में आप लेबलिंग नहीं करते हो, पर डायग्राम का मतलब होता है कि आपको ड्रॉ करके उसको लेबल करना है. जब तक आप लेबल नहीं करोगे यू विल नॉट गेट मार्क्स. तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके बताया है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस. फंक्शन, दे एब्जॉर्ब सम सब्सटेंसेस, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीशन करते हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया किडनी ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग बनी हुई होती है, इसकी आउटर लाइनिंग, इनर लाइनिंग. किडनी में क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है. किडनी इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट. हमारे बॉडी में ड्यूरिंग डाइजेशन लॉट्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड, लाइक यूरिक एसिड है, यूरिया है, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर ऑल नाइट्रोजिनस वेस्ट. तो ये फिर अल्टीमेटली नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिन बनाते हैं एंड इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी. किडनी इनको एक्सक्रीट करती है हमारे बॉडी से. इस वेस्ट, हार्मफुल, पॉइजनस, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती है किडनी. तो किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे डू दिस फंक्शन to excrete the nitrogenous waste. So naturally kidney tubules are made up of cuboidal epithelial tissues. तो it is understood कि वो excretion का काम करते हैं, वो nitrogenous waste को excrete करते हैं through their cell membrane. और इसके अलावा फंक्शन इसका है, secretion का भी फंक्शन है. they secrete some substances, some liquids भी secrete करते हैं, और इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ किया है. राइट, तो वी विल मूव फर्दर नाउ. वी हैव कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. अब इसका भी एज द नेम सजेस्ट,
कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज आर दोज टिश्यूज, नंबर वन, जो कॉलम के शेप के होते हैं। सेम ये जो आपके टिश्यूज हैं, इनकी शेप चेंज हो रही है। अगर ये थोड़े इलांगेटेड हो जाते हैं, दिस क्यूबॉइडल टिश्यूज इफ दे बिकम इलांगेटेड, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, पिलर की तरह बन जाते हैं, देन दे विल बी नोन एज columnar epithelial tissue. Columnar means just like pillar, पिलर की तरह ये टिश्यूज है। बाकी इसमें सब कुछ है जो आपको मैंने इनमें स्ट्रक्चर बताया। दे हैव बेस मेम्ब्रेन, ये इसकी डेलिकेट बेस मेम्ब्रेन है। दे आर सिचुएटेड ऑन दिस बेस मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, बेस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड इसके बाद आ जाता है कि ये इलोंगेटेड पिलर लाइक सेल्स है, कॉलमनर, दैट इज वाई इसका नाम भी कॉलमनर, कॉलम की तरह के हैं ये। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस इज एट द बेस, न्यूक्लियस इसका बाकियों में तो सेंटर में है, पर इसका न्यूक्लियस इज एट द बेस ऑफ द टिश्यू। ये बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बिल्कुल इसके साथ ही इसका न्यूक्लियस है। सो आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है, अपने मन मर्जी से आपने कुछ भी नहीं ड्रॉ कर देना है। बेसमेंट पे है, नीचे है न्यूक्लियस, तो आपने नीचे ही ड्रॉ करना है। और ध्यान रखो कि इसमें बेसमेंट पे होता है न्यूक्लियस। बाकी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन सब में भी यू कैन से ईदर बेस मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन, वन एंड द सेम थिंग। तो लोकेशन इनकी कहाँ है, लोकेशन और दूसरा मैंने जो इसकी जनरल प्रॉपर्टी बताई है वो तो है ही इसमें कि दे आर ऑल टाइटली पैक्ड, कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है इनमें, लिविंग सेल्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बेस मेम्ब्रेन है। सो बाकी की प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल जो जनरल मैंने प्रॉपर्टीज में बताई थी उसी तरह से। ना इसकी पर्टिकुलरली कहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दीज टिश्यूज। लोकेशन है लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक की लाइनिंग इसमें होती है। स्टमक की लाइनिंग, इनर लाइनिंग में दीज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड। नंबर टू, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा कोलोन, जो इंटेस्टाइन के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक पार्ट आता है हमारे डाइजेस्टिव कैनाल का, सो कोलोन उसको बोलते हैं, उसकी भी इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज एंड गॉल ब्लैडर। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ लगा भी हुआ है, इसमें आपको अगर दिखाई देता है तो ये ग्रीन कलर का, दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ये बिलो द लिवर देयर इज अ ग्लैंड विच स्टोर्स द बाइल, जो लिवर से बाइल प्रोड्यूस होता है उसको ये स्टोर करता है, और टाइम टाइम पे इट सेंड इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गॉल ब्लैडर एक ग्लैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, तो उसकी भी इनर लाइनिंग is made up of columnar tissues। इसके बाद आ जाता है, तो एक बार दोबारा लोकेशन इसकी बताती हूँ, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, कोलोन की लाइनिंग, एज वेल एज गॉल ब्लैडर की लाइनिंग इज मेड अप ऑफ कॉलमनर टिश्यूज। नेक्स्ट है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं। अब ये पिलर लाइक तो है ही, न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेस है, काम है इसका एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। म्यूकस इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस। म्यूकस क्या काम करता है हमारे स्टमक में, आप 10th क्लास में यू विल स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास में, तो उसमें हम पढ़ाते हैं स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, इट सिक्रेट्स सम डाइजेस्टिव जूसेस, उसमें से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, विच मेक्स द मीडियम एसिडिक, एंड एसिडिक मीडियम हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड इन स्टमक। तो हमारे स्टमक की वॉल्स, दे प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ, दे सिक्रेट अ नंबर ऑफ थिंग्स। एक तो डाइजेस्टिव जूसेस में, और डाइजेस्टिव जूसेस में एक HCl होता है और एक पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, और नंबर 3 म्यूकस भी होता है, दिस इज म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है हमारे स्टमक में, कि वो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उससे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है।
तो हमारे स्टमक में जो खुद नहीं, स्टमक ने ही जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस किए लाइक HCl वगैरह, उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। तो नेचुरल वे में HCl प्रोड्यूस हुआ तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस भी प्रोड्यूस हुआ। अब म्यूकस किसने प्रोड्यूस किया, किसने सिक्रीट किया? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज ने। दे फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक, राइट। तो उसने म्यूकस प्रोड्यूस किया, तो प्रोटेक्शन का काम भी आ गया इसमें, सिक्रीशन का काम भी आ गया और एब्जॉर्प्शन का काम भी हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली सेंटर में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका फंक्शन ही ये है कि इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करती है इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाए होते हैं उनमें एंड दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करती है, तो नेचुरली कॉलमनर एपिथेलियल की इनर लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की भी, तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन इसका बन गया एब्जॉर्प्शन का। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दे एब्जॉर्ब? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल। तो ये हो गया इसका एब्जॉर्प्शन का काम। ये हो गया सिक्रीशन का काम, म्यूकस सिक्रीट होता है विच प्रोटेक्ट्स द inner lining of stomach from this hydrochloric acid। और उसके बाद सो दीज आर द फंक्शन, पिलर लाइक होते हैं, पिलर लाइक बनाए हुए हैं हमने, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, ये सारा काम ये करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है, पिलर लाइक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलमनर एपिथेलियल। सो नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ये सब आपस में इनका ही मॉडिफिकेशन है। अगर आपके कॉलमनर टिश्यूज में कहीं कहीं अगर ग्लैंड्स भी बन जाती हैं, ग्लैंडुलर फॉर्म में उनकी शेप हो जाती है एंड दे स्टार्ट सिक्रेटिंग, ग्लैंड्स क्या काम करती है? सिक्रीशन का काम करती है। तो वो अगर सिक्रीशन उनका कोई ना कोई चीज़ का सिक्रीशन होता है, देन दे विल बी नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। लोकेशन इनका कहाँ होता है? ग्लैंड्स। जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, एपिथेलियल इनर लाइनिंग तो उनकी बनी ही होती है एपिथेलियल टिश्यूज की, और अगर वो उनमें ग्लैंड्स भी हैं then they will be known as glandular epithelial tissue। तो जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं और क्यूबिकल सेल्स हैं हमारे, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये एक्चुअली लोकेशन तो इसकी सिर्फ ग्लैंड्स की आपको बताई है। और दूसरा कि ये भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत होता है इनका, समटाइम्स राउंड ऑल्सो, कभी कभी ये ब्रांच्ड होते हैं। ये ग्लैंड्स जो है, देखो इसमें तो ब्रांच बनी हुई है, ब्रांच भी है, ये भी ब्रांच है। These are smaller ones, ये बड़ी बड़ी ग्लैंड्स हैं। सो ब्रांच्ड ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, अनब्रांच्ड ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, क्यूबिकल सेल्स भी हो सकते हैं इनमें कहीं कहीं पर। सो यहाँ पे जैसे क्यूबिकल सेल्स भी बन सकते हैं, इसमें क्यूबिकल सेल्स भी हो सकते हैं। These are the characteristic features of glandular epithelial tissue। मेन तो फंक्शन इसका यही है, as the name suggests they are found in the glands, different types of glands में ये होते हैं। एंड इसका मैंने डायग्राम भी बनाया, न्यूक्लियस, इसमें सब में ये ग्लैंड्स हैं। तो दिस इज गॉबलेट सेल्स, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो ग्लैंड्स बना रहे हैं। सो गॉबलेट सेल्स एंड दीज आर द ग्लैंड्स। दिस इज सपोर्टिंग सेल्स हैं इसके, ये सपोर्ट कर रहे हैं ग्लैंड्स को। नीचे छोटे छोटे और सेल्स हैं, मे बी क्यूबिकल सेल्स, क्यूब के तरह के भी हो सकते हैं, विच आर सपोर्टिंग दीज ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। गॉबलेट सेल्स है ये, दिस इज स्पेशल, इसका जिक्र इसमें किया हुआ है डायग्राम में भी। यू विल सी, यू विल ऑलवेज सी गॉबलेट सेल्स। नीचे सपोर्ट करने के लिए दीज आर स्मॉल स्मॉल cells, cubical or round, whatever it is, supporting cells इनको बोलते हैं। and this is as usual base membrane या basement membrane, ये जो नीचे वाली है this is basement membrane, right। and last में आ जाता है fifth type of 5, number 5, that is your ciliated epithelial tissues। अब what are ciliated epithelial tissues?
जैसा कि एज द नेम सजेस्ट दे हैव सीलिया। सीलिया का कभी आपने नाम सुना है? व्हाट आर सीलिया? सीलिया आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर इस तरह से स्लीपर के शेप का होता है, और उसकी आउटर जो स्किन होती है, सरफेस होती है, सेल मेम्ब्रेन, इट इज यूनिसेल्युलर पैरामीशियम, जिसमें अमीबा आता है, उसी प्रोटोजोआ क्लास में ये आता है। सो इट इज हैविंग स्मॉल, whole body is covered with small hair like structure, and these hair like structures are known as cilia. एक्चुअली बायो में समटाइम्स आपका ये वर्ड आएगा सीलिया, कभी कभी वर्ड आएगा फ्लैजिला, कभी कभी वर्ड आएगा फिलामेंट। ये फिलामेंट, फ्लैजिला, सीलिया सब एक ही मतलब इसका मतलब एक ही है, मीनिंग इज द सेम, दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो उनका नाम अलग अलग क्यों है? जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, कि अगर तो फ्लैजिला है तो वो इट इज़ इन 1 और 2 इन नंबर। जैसे यूग्लिना में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम फ्लैजिला बोल देते हैं। लाइक इसी तरह से कुछ प्लांट्स में एक सिंगल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने उसमें देखा स्टेमन में सिंगल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज फिलामेंट, उसको फिलामेंट बोल देते हैं। इसी तरह से एनिमल्स में जो पैरामीशियम है उसमें स्मॉल स्मॉल न्यूमरस hair like structures, minute, those structures are known as cilia. So cilia, they are large in number, they cover the whole surface of cell, पूरे सरफेस को कवर कर लेते हैं। जैसे पैरामीशियम का एक सेल होता है यूनिसेलुलर, तो उसकी पूरी सरफेस को सीलिया कवर करते हैं। तो यहाँ पर भी वी आर सेइंग सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ही यही है कि दे हैव सीलिया ऑन देम, थ्रेड लाइक, हेयर लाइक, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स से ये ऊपर से कवर्ड है। सो ये जो ऊपर मैंने बनाए हैं दीज आर सीलिया। और वैसे ये कॉलमनर जैसे ही हैं, जस्ट लाइक कॉलमनर। वही कॉलमनर टिश्यूज के ऊपर, above columnar tissues, if these hair like structures are present, then you can say them as ciliated epithelial tissue। उनको ciliated epithelial आप बोल सकते हो। तो ciliated epithelial tissue है, इनके ऊपर सीलिया है, तो कुछ तो इनका स्पेशल स्पेसिफिक फंक्शन होगा सीलिया का। And what is that function? Rhythmic beating of cilia. सीलिया इतनी तेजी से रिदमिक बीट करते हैं, बीटिंग करते हैं, इस तरह से बीट करते हैं कि जितने भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, दे विल बी पुश्ड इन वन डायरेक्शन, इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। जहां हम उनको पुश करना चाहते हैं इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, दे विल बी पुश्ड बिकॉज ऑफ द वेरी बिल्कुल ही रैपिड रिदमिक मूवमेंट से दिस सीलिया दे विल पुश द पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपको पुश करना है वो कर देते हैं, नेचुरल वे में दे आर फाउंड। तो सीलिएटेड एपिथेलियल कहाँ कहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज? नंबर 1, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आ गया वही फंक्शन जो मैंने अभी बताया था, रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक बीटिंग का जो फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे में क्या होता है, बकल कैविटी, दिस नेजल पैसेज से द विंड गोज इनटू योर विंड पाइप, इसमें जाती है, इसोफेगस, सॉरी फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, दैट इज वॉइस बॉक्स, और एयर इज पुश्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू ट्रैकिया, थ्रू ट्रैकियोल्स, लंग्स में जाती है। तो कोई तो एयर को अब कौन पुश करेगा? नहीं तो एक ही जगह एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पड़ी रहेगी। सो कौन पुश करता है? सीलिएटेड एपिथेलियल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यू कैन सी सच एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन सीलिया का। सीलिया दे डू रिदमिक मूवमेंट सो रैपिडली कि दे पुश द
air particles in the downward direction, in the trachea, then into both the lungs, उसमें हमारी एयर चली जाती है। इसी तरह से हमारे जो आपके ईसोफेगस है उसमें भी दे सीलिया दे आर फाउंड, यहाँ पे आपको लिखा है ट्रैक। नेफ्रॉन में भी, नेफ्रॉन कहाँ है आपका, मैंने अभी बताया था किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन। ब्रेन में हमारे न्यूरॉन होते हैं, किडनी के अंदर वेरी माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर, जिसको यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि किडनी लाइनिंग, ये वाला किडनी ट्यूब्यूल्स, वो नेफ्रॉन बनाते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स। उनमें भी क्योंकि वेस्ट मटेरियल का सिक्रीशन होता है, एक्सक्रीट होता है वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल को पुश करने के लिए दीज सीलिया दे आर हेल्पफुल। इसी तरह से फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स में ओवम या एग, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है एग, इट उसका फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब्स में, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंटर इनटू फेलोपियन ट्यूब्स और उसमें फर्टिलाइजेशन, दैट इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यूनियन ऑफ एग सेल एंड स्पर्म टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब्स। तो उसमें भी एग जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इट इज पुश्ड बाय द वेरी क्विक रिदमिक मूवमेंट ऑफ दिस सीलिया। और इसी तरह से ये सीलिया मूव सॉलिड पार्टिकल in one direction, that is in desired direction, जिस डायरेक्शन में उन सॉलिड पार्टिकल्स को जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में ये ऐसे ऐसे करके पुश करके आगे उसको भेज देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ आज एनिमल टिश्यू तो पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन आपको देख के पता लग गया होगा कि सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू इज टेकिंग सो मच टाइम। इतना टाइम एक एपिथेलियल टिश्यू को अगर आप ठीक से कराओगे आप, तो इतना टाइम उसी में लग गया है। सो इसलिए मैंने आज पर्पसली आई हैव टेकन ओनली वन टॉपिक, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो उसी के मैंने पहले जर्नल प्रॉपर्टीज, फीचर्स, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज है, लाइक स्क्वेमोजल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सीलिएटेड, उनका एक एक करके उनका लोकेशन, उनका फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो नेक्स्ट, इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल टेक कनेक्टिव टिश्यू, विच इज़ ऑल्सो बहुत आपका डिटेल में इलेबोरेट किया हुआ है, क्योंकि उसमें आपने एरियोलर टिश्यू तो चलो 2-3 लाइनों में पूरा हो जाएगा, बट कार्टिलेज एंड बोन में डिफरेंस, what is cartilage, what is bone, what are the differences between cartilage and bone, फिर टेंडन एंड लिगामेंट का सीधा आपने डिफरेंसेस करने हैं, what are tendon, फिर उसके बाद ब्लड इटसेल्फ, जब मैं ब्लड का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ब्लड में फर्दर यू विल बी हैविंग डिफरेंट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड होगा, तो ये मैं अलग से बताऊंगी। हाँ, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू एक सेशन में मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, और नेक्स्ट सेशन में अगेन वी विल मीट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।